song by लता जी। तो लता जी का गाना बहुत डिफ़िकल्ट है एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन मुरादपुरी हुआ और मेरे दोस्त औरब जी, इन्होंने मेरे साथ रह के बहुत सारा अच्छा इस प्रोजेक्ट में बहुत ही हेल्प किया इन्होंने। और इस गाने के साथ हम लोग जितना हुआ अच्छा किया, क्योंकि आडिदा ने इस गाने को बनाया है। हम लोग इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा कोशिश करके हम लोगों ने किया साथ में। काफ़ी मेहनत गई है इस सॉन्ग के पीछे, काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव किए गए, काफ़ी हर 1-2-3 दिन में कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कैसा रखें, तो काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में सॉन्ग बहुत अच्छा हो गया। आपसे कहना चाहेंगे जो गाना गाया श्योर। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। थैंक यू। माय नेम इज़ मिस मौमिता दत्ता। मैं मुंबई में 1.5 साल से हूँ। मैंने कुछ मूवीज़ के लिए गाने गाए हैं जो आने वाले हैं एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये गाना गाने का मौका मिला। थैंक्स पवन जी, थैंक्स आरव एंड थैंक्स टू सुबोध जी। और ये गाना आप सबको पता है लता जी का है। सो लता जी का गाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैंने बहुत दिल से गाया एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगे। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। First of all, thank you so much. The Bollywood, this is being the debut into the Bollywood industry. I'm really honored and happy. When I'm coming from San Francisco, US, it's everything happened as a destiny, and I'm so thankful to God for have everything happen as we anticipated. So I love the video. It's amazing. And the JB Star Films collaboration with Bhushan Patyal, we had great teamwork, and my debut as an actor, I'm looking forward for a lot more stuff in Bollywood. मैं काफ़ी खुश हूँ कि इतना अच्छा वीडियो बन गया। थैंक्स टू द डायरेक्टर सुबोध चोपड़ा जी, काफ़ी अच्छा काम किया, एंड भूषण पटियाल जी जो पूरा प्रोडक्शन टीम एंड द होल टीम वर्क विद द सिंगर्स एंड एवरीवन, एंड राहुल कोहली जी इज़ माय को एक्टर। आई थिंक वी बोथ मेड ए ग्रेट टीम। हम दोनों का केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा लगा था, तो बहुत खुश हूँ। तो जी ये गाना काफ़ी पॉपुलर, आर डी बर्मन का काफ़ी पॉपुलर नंबर है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने दिल के करीब आर डी बर्मन का म्यूज़िक आपके लिए? मुझे काफ़ी पसंद है। दिस सॉन्ग इवन नाउ एवरीवन दे सिंग सो मच, लाइक कभी भी आप रोमांटिक मूड में हो तो यही गाना लगा के सुनते रहते हो। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद यही सॉन्ग पे एक्टिंग भी करूँगी, तो एकदम से it just brought chills. Ma'am, we'd like to know that how was the journey from San Francisco to Bollywood, and what challenges did you face in the journey? That's a good question. So in San Francisco, I used to run a company called Dance Dil Se, which is a theatre production company. So I own the company with script writing to direction to choreographing, everything I used to do. With 200 people, we used to do big shows in US, and they were like all sold out and very big hit. So that's where I got the guts to come and step into the industry, Bollywood, and I also into Tollywood as well in Telugu. I debuted as a heroine in a movie called Butterflies. The shooting is all over, and next month it's releasing internationally too. So I'm so fortunate that with coming from San Francisco to Bollywood and Tollywood, I got a great entry in Bollywood, debut into the music video, and Tollywood as a heroine. So it's a great start, and I can't wait that where the journey takes to. I think I should thank all the stars getting aligned and the destiny pathing in a and good what is way. the strength you find yourself as an actress? क्या strength है? What is that confidence or something, creative talent? For me, I people generally, directors tell that I'm a director's baby type. Like whatever the director tells, I just never say no, and then I just jump into things. In this video also, if you notice, I don't know swimming at all,
but if you see, there are a lot of swimming scenes. So I jumped into the water because the director asked me to. So there's no second. That's the guts you need to have when you come into the acting. That what you know behind scenes, what you do not know behind scenes, nobody cares. What you do in front of the camera, that all what matters. So as long as you have the guts to jump into and then just give your best, and rest is all like how it goes. Lastly, asking what kind of role do you want to explore, and do you watch the Hindi movies regularly, or what is your favorite movie as such? I'm a very big Shah Rukh Khan fan, like crazy Shah Rukh Khan fan. So I watch a lot of Hindi movies, like pretty much every movie that comes out, because I studied in Nagpur, and then I'm like in Mumbai, from Mumbai as well, and also from Hyderabad. So I cover all industries. I'm starting off as a heroine right now, and explore a lot more opportunities with lead actress, and not just restrict there. Any good major role that comes into the Bollywood or Tollywood, I'm ready to jump in. It's all about talent. I'm very passionate about the acting and talent. So wherever there's a scope for your talent to showcase, I am there. Thank you. मेरा नाम राहुल कोहली है, मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग फैकल्टी भी हूँ FCAI में। और ये वीडियो ऐसे हुआ कि ज्योत्सना USA से आई थी और वो अपनी कुछ एक्टिंग स्किल्स को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहती थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उन्हें कुछ क्लासेस दे सकूं और हमने साथ काम किया। एंड देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये म्यूज़िक वीडियो का कुछ बिल्डअप हो रहा था FCI प्रोडक्शंस की तरफ से, तो हमने सोचा क्यों ना ज्योत्सना जी को ही चांस दिया जाए। बहुत ईगर हैं वो और बहुत कीन हैं और एंथुजियास्टिक एक्ट्रेस हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। तो हमने, और वैसे भी FCI हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है, उनको चांस देने के लिए हमेशा कमिटेड रहते हैं हम लोग। तो ऐसे करके ये म्यूज़िक वीडियो बन पाया और वहाँ से ही स्टार्टिंग हुई। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट था म्यूज़िक वीडियो का, वो हमें दिखाना था कि एक कपल है जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से है, तो उनका डस्की कम्प्लेक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। उनकी डस्की ब्यूटी है, अलग टाइप की ब्यूटी है, वो कन्वेंशनल ब्यूटी नहीं है इंडिया की, तो वो हमें बहुत सूट किया। और द कॉन्सेप्ट वाज अ नॉर्थ इंडियन गाय एंड अ साउथ इंडियन वाइफ, तो इसलिए उनको चूज़ किया गया क्योंकि वो फिट बैठ रही थी। अभी हम सोच रहे हैं कुछ वेब सीरीज़ के बारे में, कुछ शॉर्ट फिल्म्स के बारे में। विल सी विद द फ्लो, जैसे जैसे जो चीज़ होती है। फिल्म इंडस्ट्री इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ लक। जब होना होता है तब एकदम से हो जाता है, कई बार आप सोच के भी नहीं कर पाते, तो जब जो चीज़ आएगी वो आपको मालूम ही चल जाएगा। बेसिकली FCI एक नई सोच से शुरू हुआ था। नई सोच ये थी कि मैं भी काफ़ी सालों से एक्टिंग स्कूल से जुड़ा रहा हूँ। मैं विक्टोरियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से भी पढ़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया में एक्टिंग, एंड यहाँ के लोकल बहुत नामी स्कूलों से भी पढ़ा हूँ एक्टिंग, थिएटर से जुड़ा रहा हूँ। पर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने एक्चुअली कैमरा फेस किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आई जो नहीं सिखाई गई थी एक्टिंग स्कूल्स में। सो मुझे लगा कहीं पे गैप है। तो जब भूषण जी ने FCI की शुरुआत की, उन्होंने मुझे बोला यार राहुल आप आके थोड़ा सिखाओ, अपनी नॉलेज शेयर करो। तो मैंने अपनी कोशिश ये की कि हम ऐसा करिकुलम डिवाइस करें अपने बच्चों के लिए कि वो स्ट्रीट स्मार्ट रेडी एक्टर बने। ये नहीं कि हम बहुत टेक्निकलिटी सीख गए थिएटर के, बड़ी एडवांस हमने कहानियाँ पढ़ ली, हमने किताबें पढ़ ली, बट जैसे ही कैमरे का वो लाल बत्ती शुरू दिखाई दी ऑन होने की, एकदम स्टन हो जाते थे बच्चे। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और क्योंकि मैं गुजर चुका था उस पूरी एक्सपीरियंस से, तो हमने जो डिवाइस किया है पूरा करिकुलम FCI के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स कुछ ही दिन पहले एक प्राइम टाइम TV के लिए शूट करके आए हैं, और मैंने उनसे पूछा क्या मुश्किल आई। उन्होंने बोला सर कुछ मुश्किल नहीं आई, वी जस्ट फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। हमें ऐसा लगा कि जैसे हम क्लास में करते हैं वैसा ही। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुन के, सेटिस्फेक्शन मिला कि हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कैमरा एक्टिंग के लिए, ताकि वो इंडस्ट्री में सीधे जाएँ और ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए कि उन्हें समझ में नहीं आ रही है। तो ये भी हम करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम नॉट ओनली एक्टिंग करना एक टेक्निकल और आर्टिस्टिक चीज़ है, टेक्निक्स हम सिखा सकते हैं, आर्ट अंदर से खुद डेवलप होता है हर इंसान के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर। बट क्या होता है कि एक्टिंग तक पहुंचने के लिए इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। यू हैव टू बी
नाइस टू पीपल, कैसे बिहेवियर रखना है आपको, कल्चरली क्या एक्सेप्टेबल है मुंबई की इंडस्ट्री में, क्या नहीं है। जैसे कि साउथ की इंडस्ट्री में डिफरेंट कल्चर एक एक्सेप्टेबल होता है, सर कह के बात की जाती है। यहाँ तक कि हम इतना डिटेल में जाते हैं कि किसी को अगर मना भी करना है तो वो कैसे मना करना है किसी स्पेसिफिक रोल के लिए। हम चाहते कि स्टूडेंट्स को वहाँ तक हम सिखाते हैं। हम थोड़ी सी भी मार्जिन नहीं छोड़ना चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इस लाइन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड ना हो। तो ये हमारी पीछे से पूरा सोच रहती है इसके पीछे स्टूडेंट्स को तैयार कराने में। और अभी हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ आई थिंक हमारा भूषण जी कौन सा बैच अभी पास आउट हो रहा है? 6 बैच पास आउट हो रहा है। और हमारी एक ज्योत्सना इज़ ऑलरेडी अ लीड एक्ट्रेस इन तेलुगु की एक फिल्म में, और उनकी और भी फिल्मों की बातें चल रही, बट उसके बारे में बात करेंगे जब हो जाएगा। वो बटरफ्लाइज तो आने ही वाली है कुछ ही टाइम में, विद इन फ्यू मंथ्स। सो शी हैज़ डन अ लीड एक्ट्रेसेस जॉब। हमारी एक और स्टूडेंट है पेपा, वो स्टार प्लस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं, एक बहुत ही मेजर सीरीज़ में प्राइम टाइम के लिए। और हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी क्राइम पेट्रोल में और सावधान इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम जो सिखा रहे हैं वो एक्चुअली यूजेबल है और वो पैसा कमा पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स स्ट्रेट अवे जस्ट आफ्टर डूइंग द कोर्स। No, actually, I think we wanted to show to the audience that feeling of, oh, I want to see more, watch more. Maybe कुछ हो जाए, मुझे और देखना है. We want that little feeling. If you do everything, then there's no point, right? You always want people to crave for stuff. अच्छा आप बताइए आपको कैसा है? Very comfortable doing all this? सी बेसिकली जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, कैमरा स्टार्ट हो जाता है, तो इट डजेंट मैटर कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है क्या नहीं है। इट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि कैरेक्टर क्या है, और कैरेक्टर था हस्बैंड एंड वाइफ का। तो हस्बैंड एंड वाइफ में प्यार होना इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस, और रोमांस होना इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो वंस द कैमरा स्टार्ट इट क्लिक ऑफ अ फिंगर एंड देन आई एम ऑन। ज्योत्सना को भी मैंने ये इनकरेज किया कि भूल जाए दुनिया, एंड योर for that specific moment we are husband and wife, so it should come very naturally. So it went well, I guess. Actually, for me it was really tough, to tell you the truth, but I think Rahul really made me comfortable ki, you know, your debut and then you know, like so many tough scenes, they're not easy. They look easy on screen, they're not easy, but I think I should give him some credit, not some, like a lot of credit, for making sure that chemistry happened and that easiness to get that real feel. If कोई भी देखे तो सोचते हैं कि सच्ची में husband and wife, you know, they're doing it. But do you believe in love, and what is love for you? Oh my God, I crazily believe in love. Big time. I mean, whatever the video you saw, that's like real me. That's how crazy I am for love. That's why I like Shah Rukh Khan. Hi everyone, this is Jyotsna B. Sharma, introducing into Bollywood and Tollywood industry from USA, San Francisco. I'm very thankful that we had our first debut actress production released today, launched. We, along with the association with FCAI, Filmy Current Production and JB Star Films. We are very proud that we had this great opportunity to launch in front of the whole media. And I should say thank you for my co-actor Rahul Kohli, who is also my mentor, and Bhushan Patial ji, who is owning the FCAI, for putting a lot of effort in collaborating for the whole production crew, and the director Subodh Chopra ji. He did a tremendously great job to execute this in such a tough schedules and to get that little emotions out from the whole production, and the whole music team who sang and the production team. Thank you to everyone for being part of this great project. एक्चुअली हम शुरुआत करना चाह रहे थे कि कोई अच्छी और मधुर सी चीज़ से हम लोग बॉलीवुड में शुरुआत करें, और इसीलिए हमने म्यूज़िक वीडियो को सबसे पहले चुना। और जैसा कि म्यूज़िक वीडियो अच्छा बना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई हम इसके बाद स्टेप वाइज आगे जाएं। जैसे टीवी करना है अभी हमको एज अ प्रोड्यूसर, हमें फिल्म्स करनी है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। तो म्यूज़िक वीडियो मुझे आसान और अच्छा लगा, और लोगों के दिलों तक पहुँचने का दिस इज़ द बेस्ट वे, आई थिंक सो। हाँ, ज्योत्सना एक्चुअली शी इज़ फ्रॉम US, एंड ज्योत्सना अभी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है, और हमारा अपना एक्टिंग स्कूल भी है, द फिल्म एंड क्रिएटिव आर्ट्स स्कूल, फिल्म एंड क्रिएटिव आर्ट्स इंस्टीट्यूट, और हमारी स्टूडेंट भी रही है, और ही इज़ द वेरी गुड एक्ट्रेस। तो हमें लगा कि क्यों ना हम मिल के एक शुरुआत की जा सकती है। और इनका US में अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है JB स्टार फिल्म्स, और हमने मिल के फिल्मी करण प्रोडक्शंस एंड JB स्टार फिल्म्स ने मिल के एक म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया है। तो यहाँ से हमारी ये पहला स्टेप है। हो सकता है कि अभी हम और भी कोलैबोरेशन में आगे कुछ
बनाएं, कुछ अच्छा क्रिएट करें। तो ऐसा बस शुरुआत है बस।